وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج شعبان کی 2 تاریخ تھی اور تیسری رات ہے. شعبان رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کیا کرنا سنت ہے اور کیا چیزیں سنت کے خلاف ہیں. تو کوئی شک نہیں کہ رمضان شعبان کا مہینہ سلف صالحین کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین کے ہاں رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا تھا. وہ چیزیں جو رمضان میں کی جانے والی ہیں اس شعبان کے مہینے میں ہی اس کی ریہرسل شروع کر دی جاتی تھی. تو چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے ہی دیکھا سوائے شعبان کے. رمضان کے بعد آپ کے سب سے زیادہ روزے کس مہینے میں ہوتے ہیں؟ شعبان کے ہوتے ہیں. فرماتی ہیں کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے سوائے چند دن کے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے اس قدر روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمنا تھی، آپ کی کوشش تھی کہ آپ کا عمل اس مہینے میں اللہ کے ہاں پیش ہو تو آپ روزہ کی حالت میں ہوں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی، حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اونچا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی کا مرتبہ مقام نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے آخری سبھی گناہ معاف کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا. اس کے باوجود آپ کے اس قدر فکر اور جن کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو فکر تھی، اور جنہیں فکر کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے ان کو فکر تو کیا پتہ بھی نہیں. یعنی اکثر و بیشتر مسلمان، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% مسلمان وہ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ شعبان ہے کیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے مہینے میں کیا سنت تھی، کیا روٹین تھی. عمل کرنا تو بات کی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس قدر فکر تھی اس مہینے کی خیر برکتیں حاصل کرنے کی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر اس بات کی کوشش کرنے کی کہ آپ کا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو روزہ کی حالت میں ہو، تو ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر ضرورت ہے کہ سال بھر کا آپ کا ریکارڈ اللہ کے یہاں پیش ہو رہا ہے، اور فکر ہی نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہم کیا کیفیت ہے. تو اس میں ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بات کر رہے تھے آپ میں کہ اس مہینے میں انسان کا عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے زیادہ روزے رکھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کا آدمی کا ریکارڈ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے انسان کو کہ اللہ کو کیا پیش کر رہا ہے، اللہ کے ہاں کیا بھیج رہا ہے. تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی کثرت ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا کہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے ہے. تو وہ روزے جب رمضان کے جو روزے فرض ہیں شعبان کے اندر اس بات کا وہ موقع ہے کہ ان روزوں کے لیے ریہرسل کر لی جائے. اور آدمی فطری طور پر جانتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس کی تیاری ہو اور جس کو تیاری کرنے کے بعد کام کرتا ہے وہ کام بہتر ہوتا ہے، اور جو کام بغیر کسی تیاری کے شروع کر دیا جائے
उस काम का कोई खातर फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरत है कि रमज़ान से पहले शाबान की कसरत से रोज़े रखकर रोज़ों की रिहर्सल करने की, ताकि रमज़ान के रोज़े रखने आसान हो जाए। और मेडिकल तौर पर भी ये सच है कि जो लोग रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखते रहते हैं, उनके लिए रमज़ान के रोज़े रखने आसान होते हैं। और जिन लोगों ने रमज़ान से पहले कभी रोज़े नहीं रखे होते, उनका ख़ासतौर पर रमज़ान के शुरू के दिनों में उनको जिस्मानी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए शाबान के रोज़ों की एक बड़ी वजह ये भी कि रमज़ान से पहले रमज़ान के रोज़ों की रिहर्सल हो जाती है। और तीसरा ये भी कि हम जानते हैं कि नमाज़ों से पहले या बाद में कोई नफल सुनते होती है। अभी हमेशा की नमाज के बाद 2 सुनते पड़ी हैं, फजर से पहले 2 सुनते पढ़ते हैं, ज़ोहर से पहले भी सुनते हैं, बाद में भी सुनते हैं। कहने का मकसद कि जिस तरह नमाज़ों के साथ सुनते और नफल है, ऐसे ही फ़र्द रोज़ों के साथ भी सुनते और नफल है। फ़र्ज रोज़ों के साथ भी सुन्नत रोज़े हैं, नफल रोज़े हैं। और सुन्नत नफल होने का माना ये है कि उसको अगर आप भी नहीं करता तो गुनहगार तो नहीं है, लेकिन उसको करने का बड़ा अजर सवाब है। और ना करने का अगरचे गुनाह तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी महरूमी है, क्योंकि अल्लाह ताला की किसी नेकी इबादत से इंसान का दूर रह जाना, उसको ना कर सकना है, ना करना हकीकत में उसकी महरूमी की देरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि ऐसे लोगों की मरम्मत भी की है। आपको बताया गया ऐसे शख्स के बारे में, आप आते कि फलां आदमी की तरह ना हो जाओ कि जो रात को तहज्जुद पढ़ता था उसने तहज्जुद पढ़ना छोड़ दिया। हालांकि तहज्जुद नफल है, लेकिन एक नेकी जिसकी अल्लाह ताला तौफीक बंदे को देता है, जब बंदा उसको छोड़ देता है, कोई शक नहीं कि उसके लिए काबिल मरम्मत है। तो शाबान के रोज़ों की ये तीन चार बड़ी बड़ी हैसियतें, एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरा इस महीने में इंसान का अमल पेश होता है, और तीसरा ये वो नफल सुनते हैं कि जिसकी हमें क़यामत के दिन ज़रूरत रहेगी, और चौथा ये कि रमज़ान से पहले शाबान के रोज़े रख कर रमज़ान के रोज़े रखने की रिहर्सल हो जाती है, आसान हो जाते हैं। और जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो मुमकिन नहीं कि वो इस तरह की बात सुने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां चीज़ करते थे, आपको फलां चीज़ पसंद थी, और फिर भी वो चीज़ ना करे। यानी मोहब्बत का दावा भी करता है और फिर भी आपकी सुन्नत पर नहीं चलता, आपके किए हुए अमल को नहीं अपनाता, फिर इसका उस दावे के झूठा होने की दलील है। खैर, बात कर रहे थे कि शाबान का महीना रमज़ान से पहले एक तो रोज़ों की रिहर्सल करने का वक़्त है, ताकि रमज़ान के लिए तैयारी हो जाए, और दूसरा रमज़ान से पहले शाबान के अंदर और क्या काम कर सकते हैं। रमज़ान के अहम तरीन इबादत में से दिन के वक्त रोज़ा है और रात को तरावी है। तो क्या तरावी सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास है, या तरावी बाकी साल के महीनों पढ़ जा सकती है। अगर हम कहते हैं कि अभी से रमज़ान के रोज़ों के लिए रिहर्सल करने, शाबान के रोज़े रखने शुरू कर दें, तो क्या हम कहेंगे कभी से तरावी पढ़ना भी शुरू कर दें, ताकि रमज़ान में तरावी पढ़ना आसान हो जाए। अब बहुत से लोग कहते हैं, बल्कि सुन के हैरान होते हैं कि शाबान में तरावी कैसे होगी। तो असल बात यह है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझे नहीं कि तरावी या रात की नमाज क्या चीज़ है। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का महीना होता या कोई दूसरा महीना होता, रमज़ान का महीना होता या दूसरा महीना होता, आप पूरा साल ही रात को 11 रकात पढ़ते थे। रमज़ान या गैर रमज़ान, हर महीने में हर रात को आप सल्लल्लाहु 11 रखते तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो जिसको हम तहज्जुद का नाम, तरावी का नाम, क़यामुल लैल, ये मुख्तलिफ नाम है, लेकिन नमाज एक ही है, एक ही नमाज है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है तहज्जुद पढ़ने की, रात को क़याम करने की, रात की नमाज़ पढ़ने की, वो सिर्फ रमज़ान में नहीं थी,
वो साल भर में है, 12 महीनों में है। तो अगर पहले इसकी तौफीक नहीं थी तो कम से कम शाबान के महीने में इसकी रिहर्सल करें, ताकि अल्लाह की तौफीक से इंसान को रात की नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ जाए, और रमज़ान में ख़ास तौर पर रात के वक्त तरावी इन चीज़ों को पढ़ना उसके लिए आसान हो जाए। तीसरा बड़ा अमल जो रमज़ान में किया जाता है वो क्या है? कुरान करीम की तिलावत है, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है, कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम इस महीने में रमज़ान में बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं, हत्ता के बाद अल्लाह के नेक बंदे हर रोज़ कुरान ख़त्म करते हैं। यानी इससे मालूम हुआ कि उनका पूरा दिन रात कुरान की तिलावत में गुजर रहा है। तो लेकिन कुरान की तिलावत भी रमज़ान में वही ज़्यादा कर सकता है कि जिसने रमज़ान से पहले भी आम दिनों के अंदर भी कुरान पढ़ने की रूटीन बनाई हो। और जब रूटीन नहीं होती, आदमी पहली बात तो उसको काम करना मुश्किल होता है, अगर करेगा भी तो उसमें तरह तरह की खामियां कमज़ोरियाँ होंगी। इसलिए अगर रमज़ान में ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहते हैं तो शाबान के महीने में ही कुरान करीम पढ़ने की हसर कर दी जाए। बात ताबीन के बारे में आता है कि वो शाबान के महीने में ही अपने काम बंद कर देते और अपने आप को रमज़ान की तैयारी के लिए कुरान की तिलावत पर लगा देते। और चौथा बड़ा काम जो रमज़ान के अंदर किया जाता है, रोज़े के हाल में सदक़े खैरात करना। और कुछ नहीं रहते, रमज़ान के सदक़े खैरात आम दिनों से बेहतर है, लेकिन क्या रमज़ान में इसे सदक़े खैरात करने हैं? हम देखते हैं सलफ़ सालिहीन को, अल्लाह के नेक बंदे की सीरत में, वो शाबान के महीने में ज़कात निकाल देते, जो फ़र्ज़ ज़कात है वो शाबान के महीने में ही निकाल देते ताकि रमज़ान में नफल सदक़े खैरात निकालें। उनका ये अंदाज़ होता है। इसलिए हमारे बहुत से लोगों ने जो सिर्फ रमज़ान को ज़कात का महीना बना रखा है, पहली बात तो सुन्नत ऐसा नहीं है, और कुछ नहीं कि रमज़ान में उसका अजर ज़्यादा है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग रमज़ान में ही सिर्फ ज़कात देने की वजह से तरह तरह की नाजायज़ चीज़ों का शिकार होते हैं। मसलन क्या है कि एक आदमी की ज़कात रमज़ान से पहले मुकम्मल हो रही है, उसका साल मुकम्मल हो रहा है, उस पर फ़र्ज़ होगी ज़कात, लेकिन वो रमज़ान के इंतज़ार में है, रमज़ान आएगा तो ज़कात निकालेंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है कि ज़कात का वक़्त हो चुका हो और फिर उसको बिला वजह लेट किया जाए। तो एक तो ये कि रमज़ान के साथ ज़कात का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ज़कात का ताल्लुक़ साल मुकम्मल होने से है। जिस महीने में भी जब भी आपके माल पर ज़कात अपने साल मुकम्मल हो जाएगा, आपको उसकी ज़कात देना होगी, चाहे वो कोई भी महीना क्यों ना हो। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी की ज़कात फ़र्ज़ करो मुहर्रम में साल उसका मुकम्मल होता है, तो वो मुहर्रम में ज़कात देने के बजाय एडवांस पहले से ही रमज़ान के महीने में दे सकता है। ऐसा किया जा सकता है, ज़कात को पहले दिया जा सकता है, लेकिन लेट उसको करना जायज़ नहीं है। तो बात कर रहे थे कि रमज़ान के ये बड़े बड़े आमाल कि जिन पर इंसान को ज़रूरत है कि पहले से तैयारी करने की, रिहर्सल करने की, और यही अल्लाह के नेक बंदों सहाबा ताबईन का किरदार था, उनका अंदाज़ था। तो शाबान का महीना कहते थे कि रमज़ान की तैयारी का महीना है, तो जिसने तैयारी की होगी उसके लिए रमज़ान का महीना अच्छा गुजरने की उम्मीद है, और जिसकी तैयारी नहीं होगी, वो लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, रमज़ान की नेमतें हासिल कर रहे हैं, और दूसरा आदमी अपनी तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी चलती रहती है। इसलिए ज़रूरत है इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम इनाम मिलने वाला है रमज़ान की रोज़े की शक्ल में, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, ज़हनी तौर पर भी तैयार हो और जिस्मानी तौर पर भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए अपने अंदर तैयारी शुरू करें, ताकि जो है रमज़ान के महीने की जो इबादत हैं उनको बेहतर से बेहतर अंदाज से किया जा सके, अल्लाह ताला की तरफ से उसमें खैर बरकतें जो हैं उनको समेटा जा सके, और असल जो रोज़े का मकसद तक़वा नेकी का उसको हासिल किया जा सके। बारक अल्लाह फ़ीकुम, जज़ाकल्लाह खैर।